morning, students. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is carbon and its compound. Have you have learned about so many things that which are made up of your glass, plastic, clay, or the metals which are present in your surrounding. For example, if I am having the pen in my hand, these are made up of the plastic, and there is a board that is having a strip. That strip is made up of the metal, and we are having so many things in our surrounding. I also have so many things which are present in my surrounding that just like a stapler that is made up of the metal, and even I am having the pen. That pen is made up of plastic, and there are so many things. Just I am having the box. That box is made up of the paper. So what you have seen that there are so many things which are present in your surrounding that can be made up of metals, plastic, clay, और आप किस चीज की बनी हो सकती है, लेदर की बनी हो सकती है, but there are so many things which are made up of other than these substances. Just like you are wearing the clothes, you are having the book, you are having the paper, etc. That are having the main component, and that component is known as the carbon. तो आपके सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी जो ना तो मेटल की बनी होंगे, ना प्लास्टिक की होंगी, ना क्ले की होंगी, ना ग्लास की बनी होंगी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट होगा जो मोस्ट कॉमन होगा उन सब के अंदर, दैट इज नोन एज योर कार्बन. दैट कार्बन, नो डाउट, इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी in our earth crust. In the earth crust it is 0.02%, and in the atmosphere it is 0.03%. एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है, एयर कह लो या एटमॉस्फेयर कह लो, उसमें यहाँ पर कितना है 0.03% है, और इन अर्थ क्रस्ट ये कितना 0.02%. इवन इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी. ये इतना कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के बाद भी इट इज वेरी इमेंस, या प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेक द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. जैसे आप सब अपने क्लोथ करते हो, बुक्स को यूज करते हो, उसके अलावा जो आपकी करंसी होती है, कागज की बनी होती है, आपकी मेडिसिन्स है, फूड है, इन सब के अंदर जो एक मेन कंपोनेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द कार्बन. इवन इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी. अर्थ के में 0.02% है और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है. even in present in your body, जो आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर भी दिस कार्बन इज आल्सो फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट वन. कि जो कार्बन है इनसाइड द बॉडी, it also present in a very plays an important role or immense role. कि जैसे हम फूड खा रहे हैं, कोई भी फूड ईट कर रहे हैं, that food is made up of your glucose, and glucose is having the formula C6H12O6, right? So what is that? It is made up of the carbon. तो ये किससे बना, कार्बन का बना हुआ. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है, दैट इज फ्रॉम द फूड, और कार्बन इज द मेन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट फूड. So we can say that कि carbon plays an important role in our earth or in our life. So what is that? You have heard about the ionic bonds in the last chapter, in which there is sharing and gaining and losing of the electron takes place. वहाँ पे आप gain और lose करते इलेक्ट्रॉन को to get the stable noble configuration. So we will start about the bonding in the carbon. तो हम किसके अंदर बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि what type of the bond is present between the carbon. Yes, bonding and carbon. Yes, so that bond which is present between the carbon, that bond is known as covalent. So before starting the covalent bond, what is the meaning of the covalent bond and what is the difference between the covalent bond and the ionic bond? In the last chapter we have discussed about the ionic bond. ionic bond पढ़ाने हमने कहा कि has high melting point and boiling point. यही बताया था. Conduct electricity in molten state
और इन सॉल्यूशन। तो क्या कर सकते हैं, मोल्टन स्टेट में और आपका किसके अंदर सॉल्यूशन में यानी पानी के अंदर डिसॉल्व कर दे तो दे विल पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर आयनिक बॉन्ड। बट इन केस ऑफ द कार्बन देयर इज अ बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, एंड इन दिस when there will be dissociation, पहले मैं आपको आयनिक की बता दूं, उसके साथ साथ चलेंगे, dissociation then forms ions, तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, आयंस बनते हैं। बट इन केस ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग the bond is not so strong, जो बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वन। ओके, तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, कम हो जाता है। किस वजह से कम हो जाता है, ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम, एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा। सेकेंड केसेस में मैंने कहा है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नहीं पास करते, चाहे मोटर स्टेट में जाए चाहे आपका सॉल्यूशन फॉर्म में, they do not allow the electric current to pass through that and do not forms the ions, they do not form the ion। जैसे इसमें मैं एग्जांपल दूं कि आपका सोडियम क्लोराइड है, जब ये आपका डिवाइड होगा तो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनेगा, यानी देयर विल बी लूजिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन takes place, so that the bond will be formed due to formation of the ion, and that bond is known as your ionic bond. But in case of the carbon, the covalent bonding is there, there will be no losing or no gaining of the electron is taking place. Why no losing or no gaining of the electron? Because electron negativity difference is less, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ द कार्बन कंपाउंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट सो मच, जब इतना ज्यादा नहीं होगा तो देयर विल बी नो बॉन्ड आयंस विल बी फॉर्म, और जब कोई भी आयंस नहीं बनेंगे, ना वहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना वहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, बट the bond will be present due to the sharing of the electrons. Before sharing of the electrons taking place, we should know about the electronic configuration of the carbon. As all of you know that carbon having atomic number 6 and its electronic configuration is 2, 4. Right? In the outermost shell, there are having the 4 electrons, and there may be loose or gain of the electrons or sharing of the electrons to form the noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लूज हो सकता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell. We remember that the bonding will be done only the electrons present in the outermost shell because they participate in formation of the bond. The inner electron will not participate. ये कभी नहीं करते क्योंकि इनका शेल का होता पूरा होता है, so they will not participate in the bonding formation. The electrons present in the outer shell will participate, and that is known as the valence. तो उसको क्या बोलेंगे, valence. तो valency will decide. Valency will decide. So what type of the bond will be formed? Either it will be your ionic bond or either it will be your covalent bond. Okay. For example, we will try to show the ionic bond की ये lose करे और gain करे. अब ये समझना, ये थोड़ा important है कि कार्बन having electron 6, 2 और 4. आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन्स आर, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल, इफ इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल हैपन? If it will gain 4 electrons,
what will be there that कि आपका यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 प्रोटॉन्स हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन्स. Listen carefully कि carbon having atomic number 6, its electronic configuration is 2 4 यानी 6 electrons have 6 protons है. Assume that if it will gain 4 electrons, so there will be 6 protons are there and 10 electrons are there. So to form 10 electrons, high amount of energy is used. So क्या है ये high amount of energy is required, which is not possible to give so much amount of that energy, and a large amount of energy will be required to form leaving behind. एक तो ये होगा कि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. सेकेंडली जब 6 इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्रोटॉन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि इसका साइज खुद का छोटा है. कार्बन का साइज में देखो कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब इस 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, तो इस 6 प्रोटॉन्स के लिए छोटे साइज होने की वजह से there will be much more repulsion taking place, and due to much more repulsion it is not possible for a carbon atom to gain 6 electrons, sorry 4 electrons. तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके गेन कर सके. क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से जो 6 प्रोटॉन है दैट आर नॉट एबल टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट केस हो गया, यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन. इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और सिर्फ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाए 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए. अब मान लो बाय चांस ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन. जब 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो there will be very same case where a high amount of energy is required to remove the electrons from the carbon atom. तो कार्बन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए. सेकेंडली हम ये कह सकते हैं 6 प्रोटॉन is not able to hold, या 2 electrons is not able to hold the 6 protons. वाइस वर्सा कुछ भी कह सकते हो, not able to hold 2 electrons. तो 6 प्रोटॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड होना क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए ना तो ये कार्बन 4 बनाएगा पॉजिटिव और ना कार्बन नेगेटिव बनाएगा. ये दोनों केसेस नहीं होंगे. अंडरस्टैंड? इससे दोबारा बताना है या कुछ डाउट और बताओ, नहीं तो मैं आगे फिर कोवलेंट बॉन्डिंग शुरू करवाता हूं. इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? यस. तो व्हाट आई एम सेइंग दैट दोबारा सुन लो कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गेन करना इसलिए डिफिकल्ट है कि जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन आपस में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाएंगे. इसीलिए इट कैन नेवर फॉर्म द 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और 4 नेगेटिव ऑन इट्स बॉन्ड. तो ये अपने ऊपर ना तो 4 नेगेटिव बनाएगा ना 4 पॉजिटिव बनाएगा, तो क्या बनेगा? तो ना तो ये लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है. इसके आउटरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. अब होगी यहाँ पे शेयरिंग. तो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग. समझना है? तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? Sharing of electrons to form compounds, and bond is known as what type of bond is known as? This is covalent bond. Before starting about the carbon-carbon bonding, we will start from the smaller one. For example, we are having the hydrogen having atomic number 1.
In its outer shell there are how much electrons are present? 1 electron is present. तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको आउटर शेल में कितने चाहिए? 2 चाहिए. तो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस विद द अदर हाइड्रोजन एटम. कि मैं कहूं एक हाइड्रोजन मेरा ये है, इसके ऊपर ये लगाया, दूसरा हाइड्रोजन मेरा ये है, इसके ऊपर ऐसे लगाया, राइट. तो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम. देखो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, जो इनके बीच में डिफरेंस है कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैटेगरी में, बोथ आर द सेम एटम. So there will be no electronegativity difference. Then what will happen? There will be sharing of the electron takes place. तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये क्या करता है? मैं तेरा से शेयर कर लेता हूँ, राइट. यानी देयर विल बी 50-50% पार्टनरशिप होगी. जैसे पार्टनरशिप होगी, दोनों मिलके कुछ करते हैं और एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं. कैसे? शेयरिंग करके 50% तुम मिलाओ, 50% मैं मिलाता हूँ और उसे एक नया बिजनेस शुरू करता है ताकि हमारा क्या हो जाए, हम स्टेबल हो जाए. अब इसकी वजह से और इसकी शेयरिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बना, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. एक एटम इस इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब दोनों आपस में शेयर किया, द बॉन्ड इज फॉर्म एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड. तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? H. तो ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगी? कोवलेंट, राइट. अब इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं. मान लो क्लोरीन है, हैविंग एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7. अब मैं कहूं कि क्लोरीन Cl2 इसकी फॉर्म में मिलता है, तो दो क्लोरीन एटम है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो ये साथ लूज कर दे या एक गेन कर ले. लेकिन यहाँ पे दोनों क्लोरीन क्लोरीन है, ना तो ये गेन कर सकता ना लूज कर सकता. तो इस केस में क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 7. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत स्टूडेंट्स ने गलत बनाया हुआ है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन. 2, 4, 6 और 7. दो क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन हम पहले रखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, राइट. इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे लिया शेयर. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन. यानी इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया. आउटर शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1. अब किसने क्या किया? मैं इससे शेयर कर लेता हूँ, तूने मेरा लिया तो मैं मेरा ले लेता हूँ, आपस में शेयर कर लेते हैं. 50-50 की पार्टनरशिप चलेगी. और ये अब ये बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड बना. तो हाउ मच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन देम? दैट इज नोन एज द सिंगल. तो इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगी? सिंगल. तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट. अच्छा चलो नेक्स्ट. ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा हुआ आप लोगों ने. O2. ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में मिलती है? O2 की फॉर्म में. हमें नहीं पता उसके अंदर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, we will discuss here. So what type of the bond is present? O2. That will be your oxygen gas. In the oxygen gas, having the oxygen having atomic number 8, its electronic configuration is 2, 6. तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में? 6. तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2. तो वैलेंसी बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कितने आपका उसमें पार्टिसिपेट करेंगे टू फॉर्म द बॉन्ड. तो यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे. और 2 है तो एक ही ऑक्सीजन और एक ही ऑक्सीजन. अब देखो इसको 2 चाहिए तो मैं 2 यहाँ लगा देती हूँ. 3, 4, 5, 6. इसको थोड़ा सा इधर जाते ज्यादा दूर हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. So how much electrons it needed to complete its electronic configuration? That is 2. तो इसने यहाँ से लिया 8 हो गए से पूरे. 2, 4, 6, 7 और 8, राइट. अब इसने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट. अब इस एटम इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बना? अब ये मत बना देना कि एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बना देना. एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका विल मेक अ सिंगल बॉन्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन में इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बनाया. एक इस
इलेक्ट्रॉन है और एक इस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बना है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया? डबल बॉन्ड। राइट, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। उसी तरह से अब है N2 नाइट्रोजन गैस। पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन गैस के बारे में। नाइट्रोजन गैस which is present in the atmosphere in the largest quantity but do not react with the other substances as one of the inert gases. inert gases तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए जितने भी हम फ्राइड फूड वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं पैकेट्स वगैरह में, so that there will be no density takes place, no foul smell or no oxidation takes place. And two, टॉपिक नंबर 7, 2 and कितने आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल, तो व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? इट्स वैलेंसी इज 3। माइनस और प्लस नहीं बता रही मैं, वैसे माइनस जाती है यदि ये किसी के साथ शेयर करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वहां होगी, लेकिन जब यहाँ पे N2 है, दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो देयर विल बी नो लूजिंग, नो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो 2 और 5। अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, 1 2 4 और 5। राइट, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4, इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर। राइट, इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए? शेयर। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया? ट्रिपल। तो किसी वजह से बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना? आपका ट्रिपल बॉन्ड बना। राइट, तो दैट विल बी अबाउट योर होमो टाइप। इसमें क्या आपके होमो टाइप बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इसको। अब हम बोलेंगे हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हिट्रो एटॉमिक का मतलब है जिसमें डिफरेंट टाइप के। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो CH4। सभी को CH4 के बारे में पता है, दैट इज द मीथेन गैस, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ योर बायोगैस। एंड इसको हम क्या बोला मैंने? मीथेन, दैट इज योर मीथेन, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ योर बायोगैस। इट इज आल्सो नोन एज योर मार्शी गैस, और CNG का भी मेन कंपोनेंट है। तो इसके अंदर देखो कार्बन के अंदर कितना है? 6, 2 और 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन में कितना? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखना कैसे बनेगा? कार्बन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है? 4, 1 2 3 4। राइट, हर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब इस हाइड्रोजन ने इसका शेयर किया, इसके बाद 2 है पूरे। इस हाइड्रोजन ने इसका शेयर किया 2 है, इस हाइड्रोजन ने इसका शेयर किया 2 है, और इस हाइड्रोजन ने इसका शेयर किया 2। हर हाइड्रोजन के तो पूरे पूरे हो गए। अब कार्बन का देखते हैं, एक भी नहीं बचा। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन का इसने शेयर किया, गेन नहीं, लूज नहीं किए। लूज करता तो लेके निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है? इन्होंने शेयर किया, तो ये कार्बन ने इसके साथ शेयर किया। अब 4 जनों के साथ इस कार्बन ने क्या किया? पार्टनरशिप। वहां पे सिंगल सिंगल के साथ पार्टनरशिप करा था, या कितनों के साथ पार्टनरशिप की? इसने 4 बंदों के साथ पार्टनरशिप की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चारों के साथ इक्वल पार्टनरशिप की। मैं 40% लगाऊंगा, मैं 4 लगा रहा हूँ, तो तुम चारों का जितना मैंने लगाया उसका 25% तुम लगाओ। राइट, उसके बाद देखो इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और 4। तो कार्बन और मीथेन के हाइड्रोजन के बीच में इन केस ऑफ हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 4 सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। किसके बीच में? इन केस ऑफ द मीथेन CH4। राइट, that will be the number of the bonds present between them। और ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड कहलाएंगे? सिंगल बॉन्ड। and that single bond is known as sigma।
type of the bond is present in case of your methane? That is your sigma bond is present between them, and that single bond is present between each carbon and the hydrogen atom in case of the methane. So methane का ये बनता है, right? So that is the covalent bonding present in the methane gas. तो जैसे अभी है कि मैंने आपको बताया since they are having the sharing of the electrons are there so that there is no charge particles are present. यानी चार्ज पार्टिकल का मतलब है यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा. जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा तो व्हाट विल हैपन? then there will be no conduction of the electricity takes place. यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग हुई. और जब किसी के साथ पार्टनरशिप होती है ना तो वो जल्दी से टूट भी सकती है. अब जब जल्दी से टूटेगी तो जिसकी वजह से दे विल हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू योर आयनिक बॉन्ड्स. अब इससे रिलेटेड कुछ है तो बताओ फटाफट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन. जस्ट टेल मी फास्ट. yes, every single bond is known as your sigma bond. अभी मैंने डबल बॉन्ड का नहीं बताया, डबल बॉन्ड का मुझे बताऊंगी तो मैं बता दूंगी आपको कौन सा सिग्मा कौन सा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है. अभी मैंने सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड बताया. जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा कहीं पे भी वो आपका क्या होगा? आपका सिग्मा बॉन्ड होगा. राइट? Is there any doubt? I'm going to give the send to that student who are not present today. कोई डाउट नहीं है? ओके. Allotropes of carbon. जो एलिमेंट कार्बन है that is present in the different forms in the nature with different physical properties. ये जो कार्बन है different forms में present है. किसके अंदर different forms से present है nature के अंदर with widely different physical properties. तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो डिफरेंट पार्ट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है कार्बन की नेचर के अंदर, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी डिफर करती है और जिस दैट इज नोन एज द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन. एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन का मतलब है द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट आर नोन एज योर कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन. तो एलोट्रोप्स का मेन पार्ट क्या है कि जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स होंगे दैट आर बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स. व्हाट डज इट मीन? कि जितने भी इसमें आपके प्रेजेंट होंगे एटम्स वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के प्रेजेंट होंगे. ना उसमें ना हाइड्रोजन का होगा, ना ऑक्सीजन होगा, ना नाइट्रोजन होगा, ना सल्फर होगा, कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा. सिर्फ और सिर्फ that is completely formed purely formed of the carbon atom. पूरा का पूरा कार्बन फॉर्म एटम से बना हुआ होगा और कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन करेंगे. that will be tetravalent in nature. जो कार्बन है this carbon is known as tetravalent. tetravalent का मतलब है 4 वैलेंसी है. 4 वैलेंसी होने की वजह से it can form the 4 bonds with the carbon atom. कि अदर कार्बन एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? शेयर कर सकते हैं. इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट इन द नेचर. अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको. तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कार्बन व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर व्हिच आर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज and that are bonded with only the carbon atom and that are known as your allotropes of the carbon. These allotropes, there are the 3 main allotropes of the carbon are known. One is your graphite, second one is your diamond, and third one will be known as fullerene. Right? Let's make fullerene to document. F-U-L-L-E-R-E-N-E.
FULLARENES. As all of you know that graphite और जो diamond है, diamond को बोलते हैं hardest substance on the earth, which do not allow the electric current to pass through them, means that is the poor conductor of the electricity, but graphite is the good conductor of electricity. एक ही के बने हुए, ये भी कार्बन, ग्रेफाइट भी पूरा का पूरा कार्बन का बना हुआ है, ये डायमंड भी पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये हार्डेस्ट है, ये सॉफ्ट है इस कंपैरिजन टू इट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, only depend upon the type of the bonding present between them, उनके पीछे किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसके बेस पे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है वो क्या रहती है, एक दूसरे से चेंज होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोशन में, तो ये चारों के चारों बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो सेम एटम के साथ बनाए चाहे डिफरेंट एटम्स के साथ बनाए। इन केस ऑफ द ग्रेफाइट देयर इज द 3 bonds are formed, 3 bonds बनते हैं इस केस। ग्रेफाइट के केस में 3 बॉन्ड बनेंगे, यानी एक कार्बन एटम 3 अलग अलग के साथ 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन विद ईच कार्बन एटम विल बी फ्री। इसमें क्या होगा, हर कार्बन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, आपका फ्री रहेगा। व्हाट डज इट मीन, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, सो electric current can passes through them, due to that the graphite is the good conductor of the electricity। क्यों, क्योंकि हर कार्बन एटम 4, जैसे मैं कहूँ कि ये कार्बन है, ये 3 कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री बचेगा, ये कार्बन 3 के साथ ज्वाइन करेगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा, ये कार्बन 3 के साथ ज्वाइन करेगा, ऐसे इसके साथ इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा, कहीं का भी आपका फ्री बच सकता है। ये यहाँ पे मान लो इसने बना दिया, यहाँ पे ये इसका हो गया 1 2 3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा, इसने इसके साथ ज्वाइन किया, ऐसे कुछ भी करके कि देयर विल बी बॉन्डिंग इज प्रेजेंट जस्ट लाइक दैट, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द 3 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन करेगा और हर कार्बन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इस एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, and due to that flow of electron the electric current can be flow through that circuit। तो उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या कर सकता है, फ्लो कर सकते हैं। यदि हम इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएं ग्रेफाइट का, बट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट जस्ट लाइक अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की शेप में होता है, 6 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट लाइक दैट। ऐसे मानो बनाए, एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कार्बन एटम हो गए। इसके साथ ही आप ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना सकते हो इसकी। अब ये कार्बन एटम देखो, एक के साथ, दो के साथ और 3 के साथ ज्वाइन है। ये कार्बन एटम एक के साथ और 2 के साथ ज्वाइन है, कभी 4 के साथ ज्वाइन कर जाएगा, जैसे ये मैं बनाऊं। अब देखो 1 2 3 के साथ ज्वाइन कर, यानी इसके पास एक फ्री बच गया, हर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या बचता रहेगा, आपका फ्री बचता रहेगा। अब यहाँ पे मान लो मैं बनाऊं इसको, तो अब इनके पास सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री बचता रहेगा,